Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start unit number 10, reading a map. In this lesson, we will learn about what is a map and how to read a map. In the previous period, we learned about a sketch and directions. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. So now let's start. Open page number 58. Please take your pencil, write CW, and today's date is 9 January 2021 and day is Saturday. What is a map? A map is diagrammatic representation of the Earth's surface or part of it. It gives information about the place through lines, shapes and other symbols. On the top of a map, the direction pointing north is shown with the help of an arrow pointing upwards. What is a map? Map क्या है? A map is a diagrammatic representation of the Earth's surface or part of it. Map अर्थ के सरफेस या उसके पार्ट का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करता है. It gives information about the place through lines, shapes and other symbols. यह लाइंस, शेप्स और अन्य सिंबल्स के थ्रू प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. On the top of a map, the direction pointing north is shown with the help of an arrow pointing upwards. मैप के टॉप पर नॉर्थ की ओर डायरेक्शन को एक एरो की हेल्प से ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए दिखाया जाता है. Like this. This is a political map of India. Okay? The top of the map is north, the bottom of the map is south, east is to the right and west is to the left. Okay dear? Now the directions on a map can also be shown by an arrow mark N, which points towards the north direction. मैप के टॉप पर नॉर्थ की ओर डायरेक्शन को एक एरो की हेल्प से ऊपर की ओर इशारा करते हुए दिखाया जाता है. स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ जो है एन, ये टॉप पे रहता है. ओके डियर? अ मैप इज जनरली अ 2-dimensional representation which is drawn on a flat surface. Example on the page of an atlas. मैप जनरली 2-dimensional रिप्रेजेंट करता है जो एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए एटलस के पेज पर देखें. लाइक दिस. अ ग्लोब इज अ 3-dimensional model of the earth and indicates clearly the location of the main cities of all the continents. We have to learn how to read a map. ग्लोब अर्थ का एक 3-dimensional मॉडल है और सभी कंटिनेंट्स के मेन सिटीज़ के लोकेशन को क्लियरली इंडिकेट्स करता है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियन इन द वर्ल्ड. उन कॉन्टिनेंट्स के मेन सिटीज़ के लोकेशन को क्लियरली इंडिकेट करता है. ओके, हमें मैप कैसे रीड किया जाता है यह सीखना होगा. लाइक दिस. इस मैप पे देखिए, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियन इन द वर्ल्ड. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट अंटार्कटिका. ओके, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस. पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, okay, and Antarctic Ocean. There are different types of maps: physical maps, political maps, climatic maps, and other maps that tell us about the industries, population, transport, minerals, crops, soil, natural resources, forest, and wildlife of a region.
Now turn your page. Symbols. Maps can be drawn to represent roads, places, rivers, lakes, mountains, etc. रोड्स, प्लेसेस, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स आदि को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप्स तैयार किए जा सकते हैं. These are represented with the help of symbols and signs. इन सिंबल और साइन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. अंडरस्टैंडिंग दिस सिंबल्स आर साइन रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ की. इन सिंबल्स को और साइन को समझने के लिए सिंबल की के यूज करने की आवश्यकता है. द की क्लियरली शोज द पिक्चर अलॉन्ग विथ अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीनिंग. मैप की रिटन डिस्क्रिप्शन के मीनिंग को पिक्चर के साथ क्लियरली शो करते हैं. मीन्स यह जो मैप की है यह सिंबल्स के मीनिंग को पिक्चर के साथ क्लियरली शो करते हैं. बिकॉज देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू शो माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, bridges, dams, temples, churches and railway tracks. Okay dear, so however a map without this information would not be useful. I have some physical maps of India like this. Distribution of forest in India. Okay, मैप की में आपको शो किया गया है बेटा पार्क, जो ट्रीज के थ्रू शो किया गया बेटा. ये स्पेशली फॉरेस्ट के लिए, तो जो फॉरेस्ट शो करते हैं. ओके बेटा, तो इस टाइप के मैप की का यूज़ करके वो शो किया जाता है. ओके, सेकंड मैप जो आपको दिखा रही हूँ वो है लोकेशन ऑफ सम मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया. टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, रेलवे इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो ये सिंबल्स यहाँ पे शो किए गए हैं. नेक्स्ट जो है सम मेजर माइनिंग सेंटर इन इंडिया. ओके, जैसे में काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं. ओके, माइनिंग सेंटर्स है इंडिया में. आयरन और कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइड, गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम. तो ये इस तरीके से शो किया जाता है. ओके, अंडरस्टूड. मतलब जैसे कि पार्क है तो ट्रीज शो करेंगे, गैस स्टेशन है तो जी शो करेंगे. ओके, कैंप ग्राउंड इट मीन्स द एरिया और प्लेस यूज फॉर कैंप मीटिंग. तो जो कैंप अरेंज करते हैं उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं. ओके, रेल रोड के लिए ट्रैक का यूज करते हैं. देन रोड के लिए एक प्लेन लाइन यूज की गई है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्केल. A map is a visual representation of a much larger area of land, so maps have to be scaled down. मैप लैंड के लार्जर एरिया का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है. इसीलिए मैप्स में यह शो करने के लिए स्केल का यूज किया गया है. इट इज इम्पोर्टेंट to understand that all parts are decreases by the same proportion. मतलब यह समझना इम्पोर्टेंट है कि all parts सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो जाते हैं, इस कम हो जाते हैं. Dear, actually it is not possible to show the actual size or distance of the earth on a map because it is too large. मीन्स जो एक्चुअल डिस्टेंस है वह हम मैप पर शो नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें मैप स्केल का यूज करना पड़ता है. द मैप इंडिकेट्स द स्केल दैट हैज बीन यूज्ड. मैप को इंडिकेट्स करने के लिए स्केल का यूज किया गया है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 150 किलोमीटर, द स्केल यूज मे बी डिस्क्राइब एज फॉलोज. यदि टू सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है तो यूज़ किए गए स्केल की नीचे की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है. लाइक दिस, लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर.
जैसे कि 1 सेंटीमीटर यह 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। देन द लाइन ड्रॉ बिटवीन द टू सिटीज शुड बी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर दोनों सिटीज के बीच की लाइन ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर इट मीन्स 100 किलोमीटर, सो 1.5 is equal to 150 kilometer. Understood dear? Therefore, this distance is represented by a smaller unit, means centimeter on the map. मतलब ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलर यूनिट का यूज किया गया है, मीन्स सेंटीमीटर का। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द हॉस्पिटल, park and school in the map given above and use the scale given to find the distance of all three from the house. ऊपर दिए गए मैप में हॉस्पिटल, पार्क और स्कूल के डिस्टेंस को मेजर करें, मीन्स डिस्टेंस को मापें, और घर से यह तीनों के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए दिए गए स्केल का यूज करें। A sketch, unlike a map, does not show direction nor does it represent accurate distance. मैप के जैसे स्केच डायरेक्शन नहीं दिखाता है और न ही यह एक्यूरेट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। A map always has an arrow on the top right hand side of the page pointing towards the north. मैप हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए मैप के टॉप राइट हैंड की ओर एक एरो होता है, मीन्स मैप हमेशा टॉप पर राइट हैंड साइड एक एरो के थ्रू नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। मैप ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द लैंड विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिंबल्स। मैप सिंबल्स और साइन की हेल्प से लैंड के डिफरेंट फीचर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो ऊपर आपको एक मैप शो किया गया है बेटा, ठीक है, तो हाउस से पार्क का डिस्टेंस, हॉस्पिटल का डिस्टेंस और स्कूल का डिस्टेंस हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे स्केल का मेजरमेंट जो दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, जैसे 2 सिटीज का डिस्टेंस बताया था बेटा, तो डिस्टेंस शो करने के लिए 2 सिटीज का 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, क्योंकि वो सिटी का शो कर रहे थे। और जैसे जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा घर, ठीक है, उस घर से हमारा स्कूल, हॉस्पिटल या पार्क का अगर डिस्टेंस हमें देखना है तो हम स्केल में 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1 किलोमीटर। सो पार्क का डिस्टेंस हम लोग अगर काउंट करते हैं तो ये 4.5 सेंटीमीटर है, इट मीन्स 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। देन स्कूल का अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर है, जो कि 3 किलोमीटर शो करता है। देन हॉस्पिटल अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? एक मैप मैं आपको शो कर रही हूँ। ओके, दिस इज अ मैप स्केल। देन हियर आपको एक जो मैप शो हो रहा है, यहाँ पे सिंबल्स और कलर्स का यूज किया गया है मैप पे। ओके डियर, द स्केल, सिंबल्स एंड कलर्स यूज ऑन अ मैप। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट uses of maps and recap of this lesson. Okay, bye dear, take care, stay home, stay safe.